Hello and very good morning, my dear students. I would like to welcome you all in this social science lecture. Today we are going to start the unit number 9, Forest and Wildlife Resources. Let us start the Forest and Wildlife Resources chapter. So before going to start, I would like to tell you that we already studied the chapter number 8, Natural Resources. So resources means what? The kind of substance which is useful for the human life, and by the physical and intellectual capacity the human can convert it into the useful substance. That kind of substances are called as resources. So in that way, in this chapter we will study about the forest and wildlife resources. So let us start. The existence, progress, and development of man is dependent on resources. We have been fulfilling our needs by getting them from nature since early times, wherein the forests are considered to be very important resources. A general meaning of forest is the accumulation of trees, means जहाँ पे ज़्यादातर वृक्ष जो है वो इकट्ठा होते हैं उस रीजन को कहा जाता है जंगल यानी कि फॉरेस्ट, राइट? As well as scrubs and heaps of grass, right? In natural vegetation, only that vegetation is included which can be raised naturally without the help of man. This is called virgin vegetation. So, कुदरती वनस्पति के अंदर ऐसी वनस्पतियाँ कि जो इंसानों की सहाय के बिना खुद से ही ग्रो होती है यानी कि उगती है, ऐसी वनस्पतियों को वर्जिन वेजिटेशन कहा जाता है. इट इज ग्रोड विदाउट द हेल्प ऑफ मैन. Now, such vegetation in India is available only in Himalayas, Sundarban, and remote areas of the Thar Desert. So, such type of vegetation is only available which grow by itself, by the nature, not by the help of human. Okay. So this kind of vegetation nowadays is only available in Himalayas, Sundarban, and Thar Desert. Second, classification of forest. How the forests are classified. So according to the different criteria, it is classified on the two bases. First is according to the administration. How the administration will manage the forest resources. First is reserved forest. Such forests are under the control of government directly. Here, there is a restriction on lumbering, collection of woods or pasturing. मतलब ऐसे प्रकार के जंगल के जहाँ पे सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण होता है, प्रत्यक्ष स्वरूप से सरकार के अंदर जो जंगल आते हैं उसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा जाता है, जहाँ पे पशुओं को चराने के लिए, लकड़ी काटने के लिए और अलग अलग वहाँ की गतिविधियों के लिए परमिशन नहीं दी जाती. ऐसे फॉरेस्ट को कहा जाता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट. सेकंड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. These forests are looked after by the administration. Local people are permitted to collect the wood and to graze their animals without causing any harm to the trees. So ये ऐसे प्रकार के जंगल है कि जो डायरेक्ट वहाँ का निभाव तंत्र है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन विंग है उसके द्वारा ही निभाव किया जाता है, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, उनको वहाँ पर लकड़े काटने की, पशुओं को खाना खिलाने ले जाने के लिए परमिशन दी जाती है. Then after, unclassified forest. These forests are still not classified. There is no restriction on tree felling and animal grazing. पशुओं को चराने के लिए और लकड़ियों को काटने के लिए वहाँ पे कोई भी नियंत्रण नहीं है. वहाँ पे कोई भी जा सकता है, कोई भी कुछ भी गतिविधि कर सकता है. So these are the classification based on the administration. The second basis for the administration according to ownership, administration and management. Okay. So according to the ownership, administration and management, first of all, the first type of forest is a state forest. मतलब राज्यों के अंदर आने वाले जंगल. यानी कि सीधी सी बात है, या तो राज्य सरकार है या तो केंद्र सरकार है उसका निभाव करेगी, और पूरे
पूरे भारत के कई सारे जंगल इसके अंदर होते हैं, स्टेट फॉरेस्ट के अंदर। कम्युनल फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैव कंट्रोल ओवर सच फॉरेस्ट, यानी कि जिला पंचायत, तालुका पंचायत, नगर पालिकाएं, इसका नियंत्रण होता है ऐसे कम्युनल फॉरेस्ट के ऊपर। प्राइवेट फॉरेस्ट यानी कि खानगी जंगल, such forest is owned by individuals. Such forests are found more in Odisha, Meghalaya, Punjab and Himachal Pradesh. But nowadays this kind of forest are in a hazardous condition. Means ऐसे प्रकार के जंगल अभी ज़्यादातर अस्तित्व नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है। तो चलिए यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन जो है फॉरेस्ट का वो खत्म होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को उगाना और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों का विनाश करना। सो डिफॉरेस्टेशन इज डायरेक्टली मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। इट इज वेरी सिंपल, प्लीज टिक मार्क दिस लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज द डिफॉरेस्टेशन। जंगलों का विनाश करना, उसे क्या कहा जाता है? डिफॉरेस्टेशन। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री अलोन बट इज वन ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम्स। पूरे विश्व की ये बहुत बड़ी समस्या है, ना कि सिर्फ भारत की। इट कैन बी सेड दैट इट इज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ मैन। ये परिणाम है मनुष्य के सफलताओं का, डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली, हाउएवर इट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द लॉस इन्फ्लिक्टेड बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस। जंगलों का विनाश जो है वो कुदरती तौर पे तो बहुत कम होता है, लेकिन इंसानों के द्वारा इसका विनाश बहुत ही ज्यादातर तौर पे होता है, जैसा कि हम देखते हैं। मॉडर्नाइजेशन और उसके बाद सिटी एरियाज का डेवलप होना, इससे कई सारे जंगलों को नुकसान पहुंचता है और डिफॉरेस्टेशन होता है। इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, व्हाट इम्पैक्ट इट कॉज ऑन द ह्यूमन लाइफ? लेट अस डिस्कस। द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज वाइड स्प्रेड। बहुत ही व्यापक है इसका स्वरूप। कैसे? The quantity of carbon dioxide increases. Greenhouse effect become more intense. With the removed forest cover, the soil is eroded and the problem of farm fertility decreases. So these are the major three problems. First two are associated with the atmosphere and second is associated with the land pollution or soil erosion जिसे कहा जाता है। Because of the deforestation, CO2 amount is increased, and as the CO2 amount increase, the greenhouse effect indirectly increases, as we know according to the carbon cycle, and we already have a detailed information about the greenhouse effect. So right now I am not discussing the greenhouse effect. You very well know that what is the greenhouse effect, right? So because of deforestation, it leads to the CO2 emission increment and the increment in the greenhouse effect. In the peninsular India, the forest area has decreased largely due to the deforestation. Many living organisms have lost their abodes. यानी कि कई सारे ऐसे प्राणी हैं, ऐसे पक्षी हैं कि जिन्होंने अपना घर जो है वो खोया है। As a result, the wild animals approach urban settlements in search of food and water. अभी हमारे घर में हमको खाना और पानी मिलता है, इसलिए हम हमारे घर में रहते हैं। लेकिन कोई बाहर वाला आए और हमारे घर के अंदर आके हमको निकाल दे और हम कुछ ना कर पाए, तो हम फिर खाने और पीने के लिए कहाँ पे जाएंगे? Where we go? So ऐसी ही सेम चीज जंगलों के प्राणियों के साथ होती है। जब जंगलों का विनाश होता है तो जंगल ये जंगली प्राणियों का, पक्षियों का, वहाँ के जीव जंतुओं का घर है। और जब हम इस घर को बर्बाद करते हैं तो वो लोग घर की तलाश में और निकल पड़ते हैं। कभी कभी बार हम देखते हैं कि शहरों के अंदर, कोई गाँव के अंदर जंगली प्राणी जो है वो आ जाते हैं। अभी देखते हैं कि हम फ्रीक्वेंटली, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें भी हमें दिखाई देता है कि लेपर्ड जो है वो भी कोई गाँव में दिखाई दिया, दीपड़ो પાંજરે પુરાયો, આ પ્રકારના સમાચારો તમે વાંચતા હશો। सो वाई इज इट हैपनिंग? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जंगलों के अंदर गए, तभी जंगलों में से प्राणी वहाँ के हैं बाहर आए। क्योंकि हम उसके घर में गए तो वो अपने घर में से तो निकल जाएंगे ना। वो थोड़ी ना इंसान है कि वो बोल सकें कि भाई हमारा घर मत उजाड़ो, हमें यहाँ पे रहने दो, हमारा खाना पीना यहाँ पे है। अब सिंपल सी बात सोचो,
कि अगर जंगल के प्राणियों की जो कार्निवोरस एनिमल्स है, यानी कि जो मांसाहारी है, तो मांसाहारी जो प्राणी है उनके खुराक के लिए जो भी भेड़ बकरी या हिरन या तो ऐसे जंगली प्राणी है कि जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो तो बाहर निकल जाएंगे। तो अभी ये वो जो मांसाहारी प्राणी है तो उनको तो फूड की रिक्वायरमेंट के लिए बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि हिरन ये सारे जंगली पशु ऐसे हैं कि जो वनस्पति या तो कुछ कुछ पेड़ों के पत्ते भी खा के जी लेते हैं, तो वो तो कहीं पे भी मिल जाएंगे। लेकिन नॉन वेजिटेरियन जो भी एनिमल्स है उनको खाना कहाँ से मिलेगा? सो इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर दे आर coming outside of the forest. So this is the result impact of deforestation. Okay, many carnivorous animals recorded killing the domestic animals of those shepherds who live near the forest. यानी कि जंगलों के आजू बाजू जो शेफर्ड्स रहते हैं, यानी कि मालधारी समाज जो है, यानी कि मालधारी वर्ग जो है, ठीक है, ट्राइबल्स जिसे कहते हैं, तो उनके पशुओं को खाने के कई सारे किस्से बनते रहते हैं। देन आफ्टर रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जंगलों को बचाने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए? द फर्स्ट, रिसर्च शुड बी कैरिड आउट टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ फूड। जंगलों का जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसका बड़ा सा रीजन है लकड़े की जरूरत। आज भी कई कई गांवों के अंदर, शहरों के अंदर भी कई कई जगह पे लकड़ों की ज़रूरत खाना पकाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए अलग अलग जगहों पे ज़रूरत रहती है। तो वो लकड़ा आता कहाँ से है भाई? सिंपली पेड़ों में से। और पेड़ ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? जंगलों में। अभी कोई पेड़ कहीं पे खड़ा है तो वहाँ पे तो कोई, अगर हमारे सोसाइटी में है तो वहाँ पे तो लोग काटने नहीं देते। तो ये कंट्रोल के बाहर ये लोग कहाँ जाते हैं? जंगलों के अंदर, और वहाँ से पेड़ों को काट के उसका लकड़ा लेके आते हैं। उसकी भी ज़रूरत है, बट वी नीड टू फाइंड एन अल्टरनेट ऑप्शन ऑफ द फूड। ओके, अल्टरनेट यूज ऑफ वुड विल सेव अवर फॉरेस्ट। Wherever the trees are to be cut inevitably for the development work or for necessity, new trees of the same species should be grown. अगर हमारी अलग अलग ज़रूरतों के लिए हम पेड़ों को काटते हैं तो पेड़ों को काटने के साथ साथ हमारी ये फ़र्ज एक ये भी बनता है कि हम उन पेड़ों को वापस उसी दूसरी जगह पे उगाएं, सेम स्पीशीज के। अगर हम कहीं से नीम का पेड़ काटते हैं तो दूसरी जगह पे, अलग जगह पे हम एक नीम का पेड़ बो दें, यानी कि प्लांटेशन कर दे उसका, तो उसकी तादाद बरकरार रहेगी। और तादाद बरकरार रहेगी तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? और जो पेड़ पूरे उग नहीं गए हैं, यानी कि आधे उगे हुए हैं, अंडर द डेवलपमेंट है, उसको काटना तो बहुत ही बड़ा अपराध है। क्योंकि अगर वो स्पीशीज ग्रो ही नहीं हुआ और आपने उसको काट दिया तो वैसा स्पीशीज लाओगे कहाँ से? लुप्त होता जाएगा धीरे धीरे। सेकंड, those industries which receive their raw material from the forest should be compelled for afforestation for future needs. ऐसे उद्योग कि जो जंगलों के ऊपर आधारित है, जैसे कि क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्रीज होती है उसका रॉ मटेरियल ही जंगलों में से आता है। अभी कोई बैट का जो लकड़ा है वो लकड़ा कहीं पे इंसानों के द्वारा तो नहीं बनता। सिंपल सी चीज़ है कि वो जंगलों के अंदर से पेड़ों को काट के उसमें से जो लकड़ा मिलेगा उसमें से बैट्स बनाएंगे। तो अभी ऐसे उद्योग, ऐसे इंडस्ट्रियाँ कि जो रॉ मटेरियल के तौर पे जंगलों के ऊपर आधारित है, ऐसी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के द्वारा इंसिस्ट करना चाहिए कि आपके द्वारा साल में 1 बार 2 बार 3 बार, जैसा आपको एडेक्वेट हो, लेकिन करना पड़ेगा, आपके द्वारा एफॉरेस्टेशन की राइड एक अरेंज की जाए। मतलब कोई एक गवर्नमेंट का हो या तो कोई भी प्राइवेट हो, जहाँ पे परमिशन मिले, एक ऐसा फील्ड पकड़िए जहाँ पे बड़ी सी तादाद में 50-100 जैसे वृक्ष जो है वो उनके द्वारा, जो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल आता है जंगलों में से, उनके द्वारा ये राइड अरेंज की जाए और वहाँ पे लार्ज अमाउंट में ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम अरेंज किया जाए। सो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। ओके, थर्ड, वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस। अभी देखो, इक्के दुक्के लोगों से कुछ नहीं हो सकता, आप लोगों को इकट्ठा होना होगा। हम जानते हैं कि झाझा हाथ रड़ियामणा, ગુજરાતીમાં કહેવત છે, એક હાથેથી જે કામ થાય, 2 હાથ હોય તો 2 હાથેથી કામ ઝડપથી થાય ને સરસ રીતે પણ થાય, બરાબર? આપણે 2 હાથ શું કામ આપ્યા છે? એક હાથથી કામ હાલે એવું હતું, બરાબર? બટ ઝાઝા હાથ રળિયામણા કે ને, કે જ્યારે બી કામ વધારે હોય ત્યારે આપણે એકથી વધારે માણસો જો એ કામ કરવા માટે જઈએ તો કામ સરળતાથી ને ઝડપથી થાય,
બરાબર, અને નવરાઈ વહેલા થઈ જાય बेसिकली. सो एक दो लोगों से ये सारी चीज़ें नहीं हासिल की जा सकती. जो हम टारगेट करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन अटकना चाहिए, एफॉरेस्टेशन होना चाहिए, जंगलों की तादाद बढ़नी चाहिए, तो कोई कम्युनिटी से, एक इंसान से लेके, शुरुआत तो एक इंसान से ही होगी या तो कोई एक समुदाय से होगी, लेकिन आगे जाके उसका स्प्रेडिंग बढ़ना चाहिए, मतलब उसका विस्तार बढ़ना चाहिए, अलग अलग लोगों को उसमें इंक्लूड करना चाहिए. 100, 200, 300, 1000, 2000, 4000, 5000, तो तादाद बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे उसकी इफेक्ट भी देखने को मिलेगी. ठीक है. सो पब्लिक अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड फॉर द एफॉरेस्टेशन. स्कूल कॉलेजेस के सिलेबस में इसको इंक्लूड करना चाहिए. अभी हमें ही नहीं इम्पोर्टेंस इसका मालूम होगा तो भाई हम जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चों को, हमारे जो पूर्वज है, उनको कैसे समझाएंगे कि जंगलों को मत काटो, पेड़ों को मत काटो, वो हमारे लिए ज़रूरी है. वरना घर में वाटर फिल्टर की जगह, वाटर प्यूरिफायर की जगह वो दिन दूर नहीं है कि एयर प्यूरिफायर भी लगाने पड़े. दिल्ली में तो लग गए. दिल्ली के अंदर तो एयर प्यूरिफायर घर घर में है. क्यों? दिल्ली की हवा ही इतनी प्रदूषित है भाई, वहां पे पेड़ों की तादाद ही इतनी कम है, आजू बाजू कोई जंगल ही नहीं है, तो उससे वातावरण के अंदर प्रदूषण इतना बढ़ गया है, जो एमिशन है उसकी वजह से, कि वहां पे घरों के अंदर लोगों को एयर फिल्टर लगाने पड़ते हैं. अभी ये हालत तो हमारे गुजरात की हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जंगल है, और जब तक जंगल है हमें कोई दिक्कत नहीं है. तो जो पीढ़ी पढ़ाई कर रही है, जो अभी तैयार हो रही है, उसके स्कूल कॉलेजेस के पढ़ाई के सिलेबस में इन चीज़ों के बारे में सिलेबस में डिस्कशन होना बहुत ही ज़रूरी है. Understood? Social forestry and agroforestry should be developed intensively by taking planned steps for the necessity of food and firewood. यानी कि एक समाज के द्वारा जंगलों का विकास करना, खेती लायक जंगलों का विकास करना, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए. In place of firewood, alternative options like solar energy, natural gas should be implemented. So, to stop the deforestation, first of all, we need to stop the usage of forestry products. जैसे कि लकड़ा है, लकड़े का इस्तेमाल कम करोगे तभी जाके जंगलों का विनाश अटकेगा ना. अभी आप ट्रीज उगाते जाओ, पीछे से पेड़ काटते गए, तो ऐसा तो नहीं चलता. So that is why we should find an alternate option of the firewood like natural gas and solar energy. फॉरेस्ट रिसोर्स स्पैरिंगली, यानी कि वैकल्प के तौर पे यूज करना चाहिए, उसका मुख्य तौर पे इस्तेमाल हमें नहीं करना है. फॉरेस्ट फायर जो भी होती है वो बहुत ही डैमेज क्रिएट करती है जंगलों को. सो इससे लड़ने के लिए हमारे पास नेशनल लेवल पे एक डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स तैयार होनी चाहिए कि कभी भी जंगलों के अंदर आग लगी या तो ऐसे भी कोई घटना हो कि जिससे जंगलों का विनाश होता हो, उसके लिए हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसी रचना होनी चाहिए कि जो इसको मेंटेन कर सके. समटाइम्स व्हेन थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिमेज, यानी कि कई बार श्रद्धालु जो है वो जंगलों के अंदर होने वाले उत्सव, वहां पे होने वाली परिक्रमा के अंदर लाखों की तादाद में लोग जंगलों के अंदर जाते हैं. बड़ी आस्था और श्रद्धा का विषय है, लोग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन लोग जाते हैं, लाखों की तादाद में जंगलों के अंदर जाते हैं, तो वहां पे उनके जाने से लोग वहां पे अच्छे से रहते नहीं है. अच्छे से कैसे नहीं रहते? जहां पे जाते हैं हम जानते हैं कि कचरा फैलाते हैं, खाने पीने का सामान ज्यादा, और खाने पीने के सामान के साथ साथ आता है प्लास्टिक्स और वेस्ट. तो वो तो कहीं पे अपने थैले में तो डालेंगे नहीं, वो कहाँ पे डालते हैं? एक गया जंगल में. तो सोच लो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि गिरनार की परिक्रमा शुरू होती है, तो गिरनार की परिक्रमा के अंदर कम से कम तकरीबन 7 से 8 लाख लोग उसकी विजिट करते हैं गिरनार की. उस टाइम पे कितने लोग? 7 से 8 लाख लोग. तो अभी उतने लोगों का कचरा कितना ज्यादा प्रोड्यूस होता होगा. कभी कभी बाहर जूनागढ़ में ऐसे एनजीओज है बने हुए हैं कि जो परिक्रमा के खत्म होने के बाद स्पेशली 15 दिन तक गिरनार की सफाई करने के लिए जाते हैं, और वो भी इक्के दुक्के लोग नहीं, 100, 200, 500 लोगों की टीम होती है. और तब जाके वो कचरा कहीं पे
निकल पाता है। सो इससे जंगल दूषित होते ही ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एन एरिया शुड बी डीमार्क्ड एंड रिजर्व्ड फॉर एनिमल पेस्चर, यानी कि पालतू पशुओं के चरने के लिए जो जगह होती है उसको रिजर्व रखना चाहिए अलग से, उसको जंगलों में चराने के लिए नहीं लेके जाना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, और नेक्स्ट टॉपिक, उससे डिस्कस करने से पहले एक चीज आपको बता दूं, रेमेडीज ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन के अंदर 8 से 10 टॉपिक है, उसमें से कोई 7 टॉपिक जब भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, कितनी विविधता है हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवों की। देयर इज लार्ज डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी इन इंडिया। हमारे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत जाओ, पूर्व से लेकर पश्चिम जाओ, बारिश, ठंड, सर्दी, गर्मी, मॉनसून, ये सारी सीजन की जो वैरायटी है हमारे पूरे के पूरे भारत में, और उसके साथ साथ लैंडस्केप्स, कहीं पे सपाट मैदान है, कहीं पे ये गहरीले घाट है, कहीं पे नदियाँ ज़्यादा है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे ऐसे सुंदरबन के जंगल है, कहीं पे सी शोर्स यानी कि दरिया किनारे ज़्यादा है। तो ऐसे ही फिजियोग्राफिकल विविधताओं के कारण, डाइवर्सिटी के कारण हमारे यहाँ पे जो वन्य जीवों के अंदर विविधता देखी जाती है वो भारी मात्रा में होती है। There are about 50 lakh species of animals and birds in the world. पूरी दुनिया में 15 लाख प्रजातियों के प्राणी और पक्षी पाए जाते हैं, और उसमें से 81,251 81,500 स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया। तो उस 15 लाख में से अकेले 81,000, इसलिए तकरीबन 80,000 तो प्रजातियां हमारे भारत में पाई जाती हैं। इंडिया स्टैंड्स 12th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता के अंदर हमारा क्रम जो है वो 12वां है। एनिमल्स फ्रॉम एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका आर सीन इन इंडिया। अलग अलग कंट्री के एनिमल्स भी हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। अफ्रीकन जरक, यूरोपियन वुल्फ, वाइल्ड गोट्स एंड कश्मीरी डियर, एलिफेंट्स एंड गिबन्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एक्सेट्रा आर फाउंड हियर। The biodiversity of India includes black bear, one-horned rhino, deer, different type of snakes, peacock, khorad, hawk, kingfisher, flamingo, etc. The snow leopard in Himalayan and the red panda found at same altitude are distinguished animal here. Currently, India is the only country in the world where tigers and lion are seen moving in natural habitats. ये 9th स्टैंडर्ड में जब मैंने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया था तब ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, यानी कि अलग अलग पशु और प्राणी और पंखियों की स्पीशीज के बारे में। अकेला भारत ही हमारा ऐसा राष्ट्र है कि जहाँ पे लायन एंड टाइगर आर सीन मूविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उनकी कुदरती अवस्था के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि जंगलों में, कहीं पे जू में या तो प्राणी संग्रहालय के अंदर नहीं। During winter, migratory birds from distant places throng into the watershed areas of Keoladeo National Park, Bharatpur and Nad Sarovar in Gujarat to spend winter. यानी कि रशिया, जहाँ पे सर्द का मौसम इतना ठंडा रहता है कि माइनस के अंदर तापमान चला जाता है, जो वहाँ के बर्ड्स को अफोर्डेबल तापमान नहीं है, तो वहाँ से माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो यहाँ पे आते हैं। नड़ सरोवर केवलादेव नेशनल पार्क है वहां पे। सी टर्टल्स कम टू ले एग्स अलोंग द सैंडी कोस्ट ऑफ ओडिशा। इंडियन पाइथन, वेरियस स्नेक्स एंड द किंग कोबरा आर फाउंड इन द साउथर्न रेन फॉरेस्ट, यानी कि दक्षिण के बरसाती जंगलों के अंदर ये अलग अलग सांपों की जात पाई जाती है, ठीक है। सो दिस इज द वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन। वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन का मतलब होता है ऐसे वन्य जीव कि जो लुप्त प्राय होने जा रहे हैं, कि जिनकी प्रजातियां खतरे में है। टुडे मेनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। टाइगर्स वर फाउंड थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी, यानी कि पिछली सदी में जो बाघ है वो भारत के कई सारे प्रांत में पाया जाता है। इवन इन द गुजरात ऑल्सो, लाइक इन ईडर, अंबाजी एंड दाता, which are the districts in which the tiger are also found parallel to the lions. Cheetah is also becoming extinct from Indian forest. Many bird species
which were very easily seen in Indian forest are now hardly seen. जंगलों के अंदर पाए जाने वाले ऐसे ऐसे पक्षी कि जो बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते थे, अभी अभी वो बिल्कुल लुप्तप्राय होने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन. सम ऑफ देम लाइक वल्चर, duck with pink throat, cranes, owls on the verge of extinction. Chilotro bird, once widespread in Arunachal of northeast, is not seen so easily. There is a danger of survival to the alligators of fresh waters of rivers and Ganga river dolphin. The number of sea turtles approaching the coast of Odisha and Gujarat is constantly decreasing. Waterfowl, Jal Biladi, once found frequently in Narmada, Tapi, Mahi and Sabarmati rivers of Gujarat, is almost extinct. A time has come for us to think about seriously. तो ये ऐसे वन्य जीवों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं कि जो लुप्त होने की कगार पे है. अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया तो वो हमें, हमारी आने वाली पीढ़ी को कभी देखने को ही नहीं मिलेंगे. अभी बाघों की तादाद जो है वो इतनी घट रही है कि हम हमारे बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाएंगे कि भारत में बाघ हुआ करते थे, तो वो बोलेंगे बाघ कैसा. हमें उनको ऐसा पिक्चर दिखाना होगा कि इसको बाघ कहते हैं, हमें लाइव देखने को नहीं मिलेगा. सो दिस आर दी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, राइट. सो यहाँ तक हमारा लेक्चर रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कैसे हम इसको वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. थैंक यू.